Hello everyone, this is Aman and welcome to the world of Aman. आज हम प्लेटो को डिस्कस करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि प्लेटो जो है वो एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है और उनका कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल फिलॉसफी पे और पॉलिटिकल साइंस के अंदर कितना है, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट. So we will cover Plato today, and this video will going to help all those student who is preparing for either NET JRF exam or for CUT, UG or PG. This will gonna help them. So let's discuss Plato. We all know that Plato was a political philosopher who started his life approximately around 472 BC and lived up to 374 BC. वे एक इथेनियन फिलोसोफर थे और थिंकर थे. मेजरली उन्होंने अपने लाइफ को एथेंस में बिताया, लेकिन उसके अलावा भी ही वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस. कई बार उन्होंने पॉलिटिकली और in a different way faced problem because of his intellectual ideas and the discourse which he was created. Obviously he had a very vast philosophy around life, ethics, virtues, state and everything. So obviously if the ideas will not coincide with the current regime of that time, they will try to somehow disturb the Plato. तो इसके कारण से उन्होंने कई बार प्रॉब्लम्स भी लाइफ में झेला, लेकिन somehow he managed to survive. Unlike the Socrates, he was the teacher of Plato and he was hanged to death because of his ideas and support to democracy. उसके कारण से he was sentenced to death. So unlike his mentor Socrates, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जी और he gave various concepts and theories as well. So we will try to discuss all of them one by one. इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि मैं उन सारे टॉपिक्स के ऊपर जाऊँ ब्रीफली, शॉर्टली में. डेप्थ में मैं जाने से खुद को बचाया है क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है और वी हैव ए लिमिटेशन टू डिस्कस थिंग्स वेरी शॉर्टली rather than going full-fledged way, in a minute, with a minute details and nuance understanding. We cannot go in that way, so we have tried to discuss it in a very brief way. So let's begin. जो मेजर पॉइंट्स इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो एलिगरी ऑफ केव्स है, जो कि कॉन्सेप्ट है प्लेटो के द्वारा. एंड after that we will also discuss the myth of metals. Knowledge is a virtue according to Plato, so how and why he said that, so we will also try to discuss it. Then we will come to the metaphysics. We also have seen that he have given the concept of how a person with knowledge can see things more clearly than those people who only use their senses to see things around them. तो उसके अंदर वो डिस्कस की गई हैं कि how metaphysics can be used and what is the relevance of that. We will also discuss later the theory of forms or theory of goods, class structure, and the Plato discussed how it is relevant for the state and the society to function properly. उसके बाद we also will discuss the various kind of virtues or like appetite or courage or wisdom, and how a person with this kind of dominant appetite or dominant traits can be categorized into 3 categories. Like that we will discuss in the ideal state thing, ideal state concept. And then we will also discuss the idea of justice, the idealism that
Plato has given, or why Plato is considered as the father of idealism, and he was considered as a utopian and ideal thinker. So we will also come to that point. Then we will also try to understand the normative philosophy that he was given, and so on and so forth. So let's begin. The major political work of Plato is basically four: the Laws, Statement, the Republic, and Apology. Apart from that, he also tried to give a different kind of concept in different work, which is either considered as Socratic dialogues or majorly the other works. So in Socratic's dialogue, Plato tried to discuss all those concept which was somehow related to Socrates, or the concept is being discussed in a Socratic dialectical way. तो उसको सोक्रेटिक डायलॉग्स के अंदर रखा गया है. इसमें मेजरली जो बुक्स आते हैं वो है अपोलॉजी, क्रीटो, यूथिप्रो, लैचेस, लाइसेस, चार्मिडेस, प्रोटैगोरस, जॉर्जियस. ये सारे बुक्स जो हैं, ये वर्क जो हैं, ये सोक्रेटिक डायलॉग्स के अंदर आते हैं. द अदर वर्क्स गिवन बाय हिम इज मीनो, फेडो, फैड्रस, सिम्पोजियम, टिमेयस, फिलेबस, Cratylus, Georgias, Ion, Menexenus, Lysier, and Greater Happias, Euthydemus. These are also the works given by Plato, but it is not the major works. His major significant works is basically the four: the Republic, Statement, Laws, and Apology. In all these books, Plato respectively discussed the ideal state and justice in Republic. He also discussed the education system and how education infrastructure should be built in a state to run it more efficiently. In Statement, he tried to discuss the nature of political leadership. In Laws, he discussed the practical governance, कि कैसे एक proper governance establish किया जा सकता है practical way में. And then he came to the he also write the book Apology. अपोलॉजी के अंदर बेसिकली वो सोक्रेट्स को डिफेंड करते हैं कि कैसे सोक्रेट्स जो है वो राइट थे, उनके साथ गलत हुआ बाय सेंटेंसिंग हिम डेथ. सो ऑल दिस बुक्स हैज़ बीन डिस्कस्ड. इसके साथ जो आप याद रख सकते हैं वो इन बुक्स के पब्लिशिंग ईयर्स को, बिकॉज ये भी एग्जाम्स में कई बार आ जाते हैं. तो जो रिपब्लिक बुक है वो 375 BC के अंदर जो है वो पब्लिश होता है. स्टेटमेंट 367 to 361 BC के बीच के अंदर लिखा जाता है. दी लॉज जो है वो 347 BC के अंदर, और जो अपॉलॉजी है वो पहले लिखा जाता है इनफैक्ट, क्योंकि प्लेटो की मृत्यु पहले हो जाती है. देन सोक्रेट्स की मृत्यु पहले हो जाती है. देन प्लेटो राइट द बुक इन डिफेंस ऑफ सोक्रेट्स इन 399 BC. तो ये सारे मेजर वर्क्स हैं प्लेटो के. अब जो मेजर कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ हैं प्लेटो, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो प्लेटो का जो एक मेन कॉन्सेप्ट्स के अंदर आते हैं वो है, जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी फोकस किया है, वो है एथिक्स और वर्चू. तो उनके हिसाब से एथिक्स और वर्चू कैसे होने चाहिए या उनका क्या रोल है, उसको हम देखने की या समझने की कोशिश करते हैं. तो प्लेटो जो है वो बोलते हैं कि हमारी जो लाइफ है, एथिक्स है, या जो काम करने का तरीका है, वो वर्चू बेस्ड होना चाहिए. वो रैंडमली नहीं होना चाहिए. वो वर्चू बेस्ड, एक वर्चुअस तरीके से जो इंसान होता है वो बेटर तरीके से एथिकल हो सकता है, और ही कैन बी ए बेटर पर्सन rather than being a normal random guy or a normal person who does not have that much of ethics or knowledge. And उन्होंने फिर बाद में बोला भी है कि जो virtuous trait है या virtuous हैबिट्स है, उसके अंदर नॉलेज बेस्ड जो वर्चू है वो सुपीरियर होता है. वो somehow it is more bigger virtue than any other virtue. Like virtues के अंदर आप ये भी रख सकते हैं कि someone is stronger, someone is having a different kind of good qualities, like कोई देखने में सुंदर है, someone is
रनिंग फास्ट एंड सो फोर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉलेज बेस्ड जो वर्चू है उनको उन्होंने जो है वो ट्रू वर्चू बोला है, मतलब ग्रेट वर्चू के अंदर उनको रखा है। तो ही सेड दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ मोरल लाइफ इज़ हैप्पीनेस और वेल बीइंग। उनके हिसाब से जो हमारे लाइफ का अल्टीमेट गोल है वो हैप्पीनेस और वेल बीइंग है, जिसको कि आप रैशनली या वर्चुअसली जी कर आप अटेन कर सकते हैं। जो इंसान, उनके हिसाब से जो इंसान रैशनली अपनी लाइफ को समझता है या जीता है, या जो जिनके पास वर्च्यूज़ हैं और जो अपनी लाइफ को वर्चुअसली जीते हैं, वो हैप्पीनेस को अटेन करते हैं, जो कि इंसान का एक अल्टीमेट गोल भी होता है समहाउ। और इसको बाद में हम पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर बेंथम को पढ़ते हैं कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर, आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि इंसान अल्टीमेटली चाहता क्या है। मेजरली इंसान हेडोनिस्ट है, दे ट्राई टू सीक प्लेजर एंड अवॉइड पेन। सो बेसिकली उसके बारे में प्लेटो भी बात करते हैं। Virtues are essential skills and habits that help a person to live a good life and a balanced life. वो बोलते हैं कि अगर इंसान के पास वर्चूज़ होगा तो अपने स्किल्स और हैबिट्स जो होंगे वर्चुअसली, तब वो इंसान अपनी लाइफ को बैलेंस करके या फिर अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से सस्टेन कर सकता है, जी सकता है। ये प्लेटो का मानना था। नाउ लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एंड द आइडियल स्टेट। प्लेटो अपनी बुक रिपब्लिक के अंदर जो है सो आइडियल स्टेट को डिस्कस करते हैं और जस्टिस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। तो उनके हिसाब से ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल वो काम करे जिसके लिए वो बेस्ट सूटेड है। मतलब अगर कोई इंसान खेती करने में या कोई इंसान कोई और काम करने में, जैसे कि बिजनेस करने में अच्छा है, तो उसको वो काम करने दिया जाए और उस काम को वो एज ए ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से करे। दैट शुड बी कंसिडर्ड एज ए जस्टिस। लाइक कोई इंसान अगर बहुत अच्छा नॉलेजेबल पर्सन है, फिलोसफर है, तो ही शुड बी कैटेगराइज अंडर द क्लास ऑफ फिलोसफर किंग्स। और उसके अंदर वो फिर सिलेक्शन का एक प्रोसेस उन्होंने बताया कि कैसे फिलोसफर किंग को सिलेक्ट किया जाएगा। उसकी एजुकेशन 50 ईयर्स तक होगी, 20 ईयर्स के बाद एक टेस्ट होगा, फिर 15 ईयर्स के बाद एक टेस्ट होगा, एक देन अगेन 15 ईयर्स के बाद टेस्ट होगा। 3 टेस्ट के अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन इंसान प्रोड्यूसर क्लास के लिए फिट है, कौन इंसान वॉरियर या ऑक्सिलरी क्लास के लिए फिट है, या कौन इंसान वो जो है वो फिलोसफर बनने के लिए रेडी है या के लिए ट्रेड्स रखता है। तो उसकी एक प्रॉपर टेस्ट होगी एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, एंड देन इट विल बी डिसाइडेड कि विच पर्सन इज़ बेस्ट सूटेड टू विच वर्क। और जब वो इंसान मिल जाए, वो जब इंसान एक फाइंड करने से एक सही तरीके से मिल जाता है, तो वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे। एक इंसान एक काम करे और एक क्लास के अंदर कैटेगराइज हो, जैसे कि 3 अलग अलग क्लास उन्होंने बताया, और एक ड्यूटी को परफॉर्म करे बहुत अच्छे तरीके से। और जब ये काम सब लोग करेंगे एक सोसाइटी के अंदर या एक स्टेट के अंदर, तो वो एक जस्टिस इंश्योर होगा उस सोसाइटी के अंदर। ये प्लेटो का मानना था। प्लेटो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज क्लास बेस्ड। ऑब्वियसली जब उन्होंने कैटेगराइज कर दिया तो क्लास बन जाती है और क्लास बेस्ड जस्टिस होता है उनके हिसाब से। ईच क्लास हैज इट्स ओन स्पेसिफिक ड्यूटी टू परफॉर्म। जो उन्होंने क्लास डिवाइडेड किए वो रूलर्स के लिए फिलोसफर किंग्स का क्लास उन्होंने डिसाइड किया है, जो कि विजडम से गाइडेड होंगे, उनके पास नॉलेज होगा, उनके पास नॉलेज का वर्च्यू और नॉलेज का वर्च्यू होगा। जो सोल्जर्स या ऑक्सिलरी क्लास है उनके वो करेज से गाइडेड होंगे। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके अंदर वर्कर्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स, आर्टिसंस या जो भी मैनुअल वर्क्स हैं, जो मैनुअल वर्क्स हैं, वो सारे कामगार जो हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, वो प्रोड्यूसर्स के अंदर आएंगे और वो बेसिकली टेम्परेंस से या एपेटाइट से गवर्न होते हैं। तो उन्होंने फाइनली ये बोला कि क्लास जो है इमूवेबल होगा इन जनरल एंड और परमानेंट है और रिजिड है। तो ये प्लेटो का एक आइडियल स्टेट या आइडियल सोसाइटी भी है, और ये आइडियल सोसाइटी जिस तरीके से फंक्शन कर ले प्रॉपरली, तो यही जस्टिस है उनके हिसाब से। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर प्लेटो
प्रपोज करते हैं कि जो गार्जियन क्लास है, जिसके अंदर फिलोसोफर और सोल्जर क्लास दोनों आते हैं, दे शुड हैव नो प्रॉपर्टी एंड दे शुड हैव नो प्राइवेट फैमिली, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि दीज टू थिंग्स आर द रूट कॉजेज जिसके कारण से लोग करप्ट हो जाते हैं, या जो रूलिंग क्लास है वो करप्ट हो जाती है। और जब रूलिंग क्लास करप्ट होती है तो नॉट ओनली द रूलिंग क्लास सफ़र बट ऑल्सो द होल masses, like the whole citizen of that nation or a country suffer। तो उनके हिसाब से फिलोसोफर और सोल्जर क्लास जो हैं, जो इनफैक्ट जो गार्डियन क्लास क्रिएट करते हैं, उनको करप्ट मतलब नॉन करप्ट रहना, उनका नॉन करप्ट रहना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वाई ही सजेस्ट कि इन दो मेजर चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, जो कि फैमिली है और प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो इंसान को करप्ट बनाती है। स्पेशली दोज हु एस्पायर टू बी दी फिलोसोफर किंग एंड दोज हु आर इन द गार्डियन क्लास हु हैव सम सॉर्ट ऑफ मोर प्रिविलेज एंड पावर। ऑब्वियसली जब पर्सनल पोजीशन होता है इंसान के पास तो इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है मटीरियली, और फैमिली टाइज जिस तरीके से फंक्शन करती है वो समहाउ ultimately benefit the few people out of the masses। और फिर क्या होता है कि बाकी पूरी जनता जो है वो somehow सफ़र करती है, और कुछ लोग oligarchs जो हैं या aristocrats जो हैं, they just become privileged, they enjoy their life and rest of the people suffer। तो उनका ये मानना था कि जो पर्सनल पोजीशन है और फैमिली टाइज है वो अल्टीमेटली भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म जो है उसको, और कन्फ्लिक्ट जो है उसको अल्टीमेटली लीड करता है। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो इससे बचाने के लिए उन्होंने इन दो चीज़ों को मना किया, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है और प्राइवेट फैमिली लाइफ है उसको। और ही सजेस्टेड और रिकमेंडेड दी एसेटिक कम्युनिज्म। मतलब कम्युनिज्म जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि वही कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया जो कॉन्सेप्ट है, वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म उस फॉर्म में मटेरियल वे में, बट ही वॉज टॉकिंग अबाउट द एसेटिक कम्युनिज्म। बेसिकली जहाँ पे वाइफ्स और प्रॉपर्टी उनकी कॉमन होंगी, मतलब किसी की पर्सनल वाइफ या चिल्ड्रन नहीं होंगे, और किसी की कोई प्रॉपर्टी पर्सनल नहीं होगी, मतलब इट शुड बी यूज इन कम्यून, जहाँ पे एक काइंड ऑफ सोसाइटी होगी गार्जियन क्लास की, जहाँ दे विल यूज़ एवरीथिंग इन कॉमन, और उनकी कोई पर्सनल वाइफ नहीं होगी। लाइक दे कैन, इफ दे हैव अर्ज टू हैव सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन विद समवन, दे कैन फॉर्म, बट दे कैन नॉट हैव परमानेंट वाइफ और परमानेंट चिल्ड्रन of their own, and also they cannot have the property and position। तो उसको उन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को एसेटिक कम्युनिज्म कहा, और एक फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी को इस्टेब्लिश करने की बात कही प्लेटो ने। इसको हम जब फर्दर समझने की कोशिश करते हैं एसेटिक कम्युनिज्म को, तो बेसिकली ये एक सेंटेंस में अगर समझाया जाए तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। इस सिमिलर सा कॉन्सेप्ट हमारे इंडियन डिस्कोर्स के अंदर एक हमारे पॉलिटिशियन या यू कुड से द प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। इफ़ यू नो दैट पर्सन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। लाइक ही वाज आल्सो ए सोशलिस्ट and great politician, and I also would like to give you the hint, he was expired in office, like while he was serving as a prime minister. So who was that person? Please comment in the comment section. Plato, in this concept of ascetic communism, basically gave or simplified it as self-control, फ्री फ्रॉम लग्जरी एंड ग्रीड, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि इसके इस तरीके से एसेटिक लाइफ जीने से क्या होगा कि इंसान जो स्पेशली गार्डियन क्लास है वो सिंप्लिसिटी को अपनाएगी, इम्ब्रेस करेगी, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा, और ग्रीड और लग्जरी जो है उसको अवॉइड किया जाएगा। ही आर्ग्यूड दैट द वेल्थ एंड एक्सेस लीड टू द करप्शन एंड सोशल डिसऑर्डर। ऑब्वियसली
जब इंसान के पास वेल्थ होगा तो वो करप्ट होगा, वो और भी ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा, और पावर होगा तो ऑब्वियसली ही विल ट्राई टू एक्यूमुलेट थिंग्स इन ए वेरी करप्ट वे एज वेल। और जब सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी, बहुत ज़्यादा एक तरीके से सेपरेशन होगा एक प्रिविलेज्ड क्लास और एक वर्किंग क्लास के बीच में, तो सोशल डिसऑर्डर होना या रिवॉल्यूशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लाइक आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को विटनेस करते हैं, या जब हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन को विटनेस करते हैं, उनके इंडिपेंडेंस मूवमेंट को देखते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रेंच सोसाइटी के अंदर हो पाई क्योंकि there was too much difference between the ruling class and the either you could say the proletariat or the working class or the common people। उनके बीच में बहुत ज़्यादा differences था पावर को लेके, इकोनॉमी वाइज और बाकी सब तरीके से। लेकिन अमेरिका के अंदर वायलेंट रिवॉल्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरह नहीं होता है, और उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट देते हैं एक अमेरिकन थिंकर हैं, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, he said that यूएस के अंदर मिडिल क्लास थी, एंड मिडिल क्लास हैड सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल। वो ना ज़्यादा अमीर होती है ना ज़्यादा गरीब होती है, तो जब गरीब और अमीर के बीच में इतना फासला नहीं होता है तो दे समहाउ प्रिवेंट दी वायलेंट रिवोल्यूशन और एनी काइंड ऑफ रिवोल्यूशन। और वो उनका लाइफ स्टाइल मिडिल क्लास का ऐसा होता है कि काइंड ऑफ स्टेबल, एंड वो दे आर एस्पायरिंग टू बी दी रिचर वन और दी ऑब्वियसली दी बॉर्जुइज, उनके बनने की प्रक्रिया में वो एस्पायर कर रहे होते हैं, और दे जस्ट वांट टू अवॉइड ए लाइफ ऑफ प्रोलेटेरिएट और यूड से दी पुअर पीपल। सो मिडिल क्लास बेसिकली रिवोल्यूशन को, वायलेंट रिवोल्यूशन को रोकने की कोशिश करता है हमेशा। और because of that, Alexis de Tocqueville, I guess he said that thing कि अमेरिकन रिवोल्यूशन, अमेरिकन सोसाइटी के अंदर रिवोल्यूशन और वायलेंट रिवोल्यूशन नहीं हुआ, उसका कारण था अमेरिका के अंदर मिडिल क्लास का होना। एंड दैट इज़ वाई प्लेटो ऑल्सो सेड दिस थिंग दैट अगर पर्सनल पोजीशन बहुत ज़्यादा होगा और करप्शन बहुत ज़्यादा होगा, और अगर रूलिंग क्लास बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, तो सोसाइटी के अंदर जो है सो यूनिटी नहीं होगा, सोसाइटी के अंदर एक हारमोनी नहीं होगा, एक सोसाइटी के अंदर एक काइंड ऑफ जस्टिस नहीं हो पाएगा सबके साथ। तो ऑब्वियसली इसलिए उन्होंने एस्थेटिक कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट सजेस्ट किया। However, this rule applied only to the ruling or guardian class. Ordinary citizens like farmer and artisans were allowed to own property and have families. जब प्लेटो ये चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं कि जो कम्युनिज्म है वो सिर्फ गार्डियन क्लास के लिए होगी, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दे हैव पावर टू ओन एंड हैव एनीथिंग and access anything which they can use them. So they can be corrupt, but for an ordinary citizens like farmer and artisans, they are already in a position जहाँ वो बहुत ज़्यादा own नहीं कर सकते, like they have a limited growth rate of increasing their property. तो वो उनको इसलिए freedom दी गई कि they can accumulate as much property as they want. Or property without power is like, it's not very much harmful. Like in a ordered society, if someone is accumulating wealth in a genuine way, in a good way, it's not a threatening thing. But for a powerful positions like politician or bureaucrat or someone of that kind of background, like started accumulating wealth, and he has only motive to accumulate wealth, then it's very, very dangerous, because they can also accumulate wealth, but very few would be the person who tries to accumulate wealth without using their power for their own benefit. Like they will not do the favoritism or nepotism or so on and so forth.
So that kind of thing will gonna happen. So the chances of ruling class or guardian class to be corrupt is far more than those of ordinary citizens like artisans and farmer. So farmer and artisans were allowed to own property and have families, right? So Plato's goal was not total economic equality, but freedom from selfish desire. Obviously, when he allowed farmers and traders to own property, then obviously there would be a kind of economic imbalances and economic inequality, and that is not his concern. His concern is that ruling class should be balanced. He should be non-corrupt. He should be for the welfare of the people. The next concept that Plato discussed is theory of forms or ideas. तो इस थियरी के अंदर प्लेटो बताते हैं कि जो फॉर्म्स या आइडियाज़ हैं वो ट्रू एसेंस और अल्टीमेट रियलिटी को दिखाता है किसी भी चीज़ का। वो हमारे सेंसेस के बियॉन्ड है वो चीज़ें। हम सेंसेस से सिर्फ वर्ल्डली चीज़ों को देख सकते हैं जो कि इम्परफेक्ट हैं और चेंज हो रही हैं, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं। लेकिन जो फॉर्म्स है, जो बेसिक और अल्टीमेट आइडिया है उस चीज़ का, वो इटर्नल है और वो अनचेंजिंग है और उसके साथ वो परफेक्ट फॉर्म में है वो। तो ये सारी चीज़ों, किसी भी चीज़ का जो बेसिक आइडिया है वो थियरी ऑफ फॉर्म्स, या उसको फॉर्म्स उन्होंने बोला है, आइडियाज़ बोला है, ठीक है। और उसको बेसिकली उन्होंने बीइंग, नेचर और बीइंग किसी भी चीज़ का बोला है। और व्हाट वी सी इन फिजिकल वर्ल्ड आर मेयरली कॉपीज और शैडोज। उनके हिसाब से जो फिजिकल वर्ल्ड जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, चाहे वो चेयर हो, फैन हो, कूलर हो, कुछ भी, तो वो बेसिकली शैडो है उस परफेक्ट आइडियाज़ का या उस परफेक्ट फॉर्म का। और वो कॉन्स्टेंटली चीज़ें जो है फिजिकल वर्ल्ड में वो चेंज हो रही हैं। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो आइडियाज़ में, ये फॉर्म में परफेक्ट और इटर्नल है। ब्यूटीफुल थिंग्स वी सी जस्ट आर रिफ्लेक्शन ऑफ इट। और जो हम अच्छी चीज़ें देखते हैं या जो ब्यूटी का जो हमारा आइडिया है, जो एस्थेटिक है, वो बेसिकली उसका शैडो या रिफ्लेक्शन है, ऐसा प्लेटो का मानना था। उसी तरीके से जो गुडनेस का कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी, जस्टिस, ट्राइंगल, एनी काइंड ऑफ शेप्स, साइजेस, जो भी किसी भी चीज़ का जो अल्टीमेट आइडिया है वो परफेक्ट फॉर्म में या उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म एग्जिस्ट करता है। लेकिन उसके कंटेम्प्रेरी, मतलब जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं किसी भी चीज़ को का, जब हम गुडनेस फाइंड करने की कोशिश करते हैं या अच्छाई या ह्यूमैनिटी, कुछ भी जो हम देखते हैं कि लोग जो कर रहे हैं वो बेसिकली इम्परफेक्ट है या फिर वो चेंज हो रही है, वो कॉन्स्टेंटली चेंज और इवॉल्विंग है। इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में परफेक्ट है। लेकिन जब हम इक्वालिटी दो लोगों के बीच में देखते हैं या इकोनॉमिक वाइज हम इक्वालिटी को देखते हैं या जस्टिस के कॉन्सेप्ट की समझने की कोशिश करते हैं या ट्राइंगल को देखते हैं किसी भी अलग अलग शेप साइजेस में, वो फिजिकल वर्ल्ड में इम्परफेक्ट हैं। तो इसी को उन्होंने थियोरी ऑफ फॉर्म्स या थियोरी ऑफ आइडियाज़ कहा है, जो बेसिकली ट्रू सेंस या अल्टीमेट रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं और वो हमारे सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंसेस नहीं किए जा सकते। उसके लिए हमें रैशनली या इंटेलेक्चुअली अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा, तभी हम उस चीज़ को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में उन्होंने समझाया कि जैसे कारपेंटर है, वो चेयर या बेड या कुछ भी, रैक्स, अलमीरा, कुछ भी बनाना चाहता है, तो वो उसके लिए मटेरियल चाहिए होगा, जो वुड्स या टूल्स बोल सकते हैं या बाकी इक्विपमेंट्स जो चाहिए होगी वो चाहिए। और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट एंटिटी है वो है आइडिया ऑफ फॉर्म्स, या उस चीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उस कारपेंटर के माइंड में, कि टेबल बनाने का या चेयर बनाने का जो कॉन्सेप्ट या नैरेटिव है वो कैसा होगा, वो बेसिकली परफेक्ट शेप में है उसके माइंड के अंदर, राइट। लेकिन जब वो बनाएगा तो वो फिजिकल फॉर्म में जब उसको शेप करेगा तो वो इम्परफेक्ट होगी और वो लिमिटेड होगी, चेंज हो रही होगी, राइट। लेकिन जो माइंड टेबल का जो कॉन्सेप्ट, सुपीरियर कॉन्सेप्ट है उसके माइंड के अंदर, वो परफेक्ट या अल्टीमेट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और लेकिन जब हम फिजिकल टेबल की या चेयर की बात करेंगे तो वो बस एक शैडो होगा उस परफेक्ट आइडिया का या उस परफेक्ट फॉर्म का। और उन्होंने जो आइडिया ऑफ फॉर्म है उसके दो रेल्म्स या दो पार्ट बताए हैं कि जिस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि
उन्होंने एलिगरी ऑफ केव्स के अंदर भी और थियरी ऑफ फॉर्म में भी दो तरह के एंटिटी को बताया है, ये समझाने के लिए कि आइडियाज़ किस तरीके से एग्जिस्ट करती है इन ए परफेक्ट वर्ल्ड, इंटेलिजिबल वर्ल्ड जिसको उन्होंने कहा है, जहाँ पे चीज़ें परफेक्ट है, अनचेंजिंग है, स्टैटिक है और एक बेटर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसको कि सिर्फ रीजन या फिर इंटेलेक्ट के थ्रू समझा जा सकता है। लेकिन हम जब विजुअल वर्ल्ड देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द चीज़ें देखते हैं फिजिकल फॉर्म में, वो सेंसेस के थ्रू देखा जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, लेकिन उसमें कॉन्स्टेंटली चीज़ें बदल रही हैं। मतलब अगर आप चेयर को देख रहे हैं और 10 साल बाद उस चेयर को देखेंगे या कुछ समय बाद देखेंगे तो वो चेंज हो जाएगी, लेकिन आपके माइंड के अंदर जो चेयर का एक आइडिया है उसी चेयर को लेके या वैसा ही इमेज सिमिलर था वो वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन वो जो चेंज आप फिजिकल वर्ल्ड में देख रहे हैं वो मतलब वो चेयर देख रहे हैं वो चेंज होगी कॉन्स्टेंटली। हम सिर्फ बिलीफ या ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं विजुअल वर्ल्ड में, एक परफेक्ट आइडिया या जो फॉर्म्स है किसी भी चीज़ का या जो रियलिटी है उसको देखने के लिए आपको इंटेलेक्ट या रीजन चाहिए होगा। मतलब इन समरी अगर बोला जाए तो ट्रू नॉलेज कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द फॉर्म्स, राइट। तो अगर किसी चीज़ को आप कंप्लीटली समझना चाहते हैं या किसी नॉलेज को अटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म्स की समझ होनी चाहिए और वो रीजन के थ्रू आएगा। वो रीजन आपको कहीं ना कहीं फॉर्म्स को समझने में की कोशिश करने में हेल्प करेगा और वो अल्टीमेटली आपको नॉलेज जो आप कर सकते हैं रीजन के थ्रू। लेकिन जब हम सेंस से चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो हम सिर्फ एक बिलीफ या ओपिनियन बना सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। एक बॉटल को जब हम देखते हैं तो हमारा एक बिलीफ हो सकता है कि ये बॉटल हमेशा अच्छा रहेगा या ये ऐसे है, ये ओपिनियन है कि इसका कलर अच्छा नहीं है या जो भी है, लेकिन वो नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज बॉटल का आपके माइंड के थ्रू माइंड में एग्जिस्ट करता है एक अल्टीमेट वे में, जो कि रीजन और इंटेलेक्ट से आएंगी। अगर हम फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को देखने की या समझने की कोशिश करें प्लेटो के थियरी ऑफ फॉर्म्स का, तो वो बेसिकली ये है कि वो हेल्प करती है हमें आइडियलिज्म को समझने में, एसेंशियलिज्म को समझने में और मेटाफिजिक्स को समझने में। आप अगर गौर से देखने की कोशिश कीजिए तो आइडियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी चीज़ आइडियल फॉर्म में होंगी, मतलब वो रियलिटी में जैसी है वैसी ना हो कि जो एक यूटोपियन वर्ल्ड में, एक परफेक्ट वर्ल्ड में जैसी एग्जिस्ट करती हैं वैसी होगी, तो वो आइडियलिज्म है, जो कि वेरी मच सिमिलर टू आइडिया ऑफ फॉर्म्स जो है या थियरी ऑफ फॉर्म्स जो है उससे कहीं ना कहीं एक एनालॉगस है, सिमिलर सी है। एसेंशियलिज्म का भी वैसा ही है कि एसेंशियलिज्म इन कॉन्ट्रास्ट टू एग्जिस्टेंशियलिज्म वो सिग्निफिकेंस को या उसके इम्पोर्टेंस को दिखाता है जो कि परफेक्ट वर्ल्ड में है, उसके एडवांटेजेस को दिखा रहा है। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म ऑन द अदर हैंड इज समथिंग विच एग्जिस्ट इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड और जो कि इम्परफेक्ट है। और मेटाफिजिक्स को भी हम समझ सकते हैं, मेटाफिजिक्स इज समथिंग विच इज ट्रांससेंडेंटल और अदर वर्ल्डली। दिस वर्ल्डली और अदर वर्ल्डली के कॉन्सेप्ट में ये है कि दिस वर्ल्डली में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, और जो अदर वर्ल्डली चीज़ें जो ट्रांससेंडेंटल है वो मेटाफिजिक्स को समझने से हमारे जो कॉन्शियस लेवल के बियॉन्ड जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसको समझने से आती हैं, जो कि वेरी मच सिमिलर टू आइडिया ऑफ फॉर्म्स से रिलेटेड है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम इस कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से समझ सकते हैं डिवाइडेड लाइन के कॉन्सेप्ट से, या जो केव का कॉन्सेप्ट है एलिगरी ऑफ केव, उसको हम उससे हम समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस है इंटेलिजिबल वर्ल्ड और विजुअल वर्ल्ड में। आपने पढ़ा होगा कि जो एलिगरी ऑफ केव्स है उसमें कुछ इंसान एक केव के अंदर फंस जाते हैं, ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल एक लाइट जल रही होती है, आग जल रही होती है, और उस साइड से कुछ ऑब्जेक्ट पास जब करता है तो उसकी शैडो बस अपोजिट वॉल पे दिखती है, और अपोजिट वॉल पे जब वो शैडो दिखती है तो लोग समझते हैं कि यही रियलिटी है। उसमें केव में फंसे हुए लोगों को लगता है कि यही रियलिटी है, बट द ट्रूथ इज डैट वो रियलिटी नहीं है, वो बस उसका एक फैसेट है, फैसेट मात्र है, या एक पार्ट फेजेज ही है। अगर उसको कम्प्लीटली समझना है तो सच में उस ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, और वो हम केव से बाहर आकर ही देख सकते हैं। तो जब उस एलिगरी ऑफ केव का ये स्टोरी है कि जब कोई एक समझदार इंसान उस केव से बाहर निकलता है, जो कि नॉलेज और लाइट्स इनलाइटनमेंट के बाद निकल सकता है कोई भी, तो वो देखता है बाहर जब आता है तो लगता है कि यार दुनिया तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं, और वो समझ नहीं पाता है कुछ समय के लिए कि क्या चल रहा है, बट आफ्टर सम टाइम ही एडजस्ट हिमसेल्फ इनटू द इनलाइटेंड वर्ल्ड, और वहाँ पे उसको चीज़ें दिखती हैं, उसको लगता है कि ये तो रियलिटी था ही नहीं जो केव के अंदर दिख रहा था, रियलिटी तो ये बाहर दुनिया के अंदर दिख रही है। फिर उसके वो
जो इंसान है जो अपने रीजन या इंटेलेक्ट से काम कर रहा होता है, उसमें से कुछ लोग जो करेजियस होते हैं वो वापस केव में जाते हैं, वापस डार्कर वर्ल्ड में जाते हैं कुछ लोगों को समझाने के लिए कि देखो तुम जो देख रहे हो बस एक फैसेट है, वो बस एक पार्ट है, वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। तुम्हारा बिलीफ या ओपिनियन हो सकता है किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्ट की को समझने का, लेकिन वो बस एक शैडो मात्र है, वो रियलिटी नहीं है। तो अगर तुम्हें शैडो को छोड़कर रियलिटी को देखना है तो तुम केव के बाहर आओ, तभी यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट द एग्जैक्ट रियलिटी इज और हाउ थिंग्स आर एक्चुअली इनटू इट्स शेप्स, राइट। तो वो उसको इनलाइटन करने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि रीजन और रैशनली सोचने के जब हम सोचते हैं उस तरीके से सोचते हैं तो तब ये हम समझ पाएंगे। तो इसके थ्रू हम इंटेलिजिबल वर्ल्ड और विजिबल वर्ल्ड को समझ सकते हैं। और प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है वो भी एक लेवल तक हम विजुअल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश कर सकते हैं। जो डिफरेंसेस है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जो इंटेलिजिबल वर्ल्ड है उसमें वो रेलम ऑफ रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग है। मतलब इंटेलिजिबल वर्ल्ड में आप तभी एंटर कर सकते हैं जब आपके पास रीजन है और अंडरस्टैंडिंग है, तभी आप चीज़ों को सही तरीके से देख सकते हैं और चीज़ों के फॉर्म्स को, रियल फॉर्म्स को समझ सकते हैं। विजुअल वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, डार्कर वर्ल्ड की बात कर ले, या फिर हम एलेगरी ऑफ केव्स के अंदर जो केव के अंदर की जो रियलिटी मतलब का जो चीज़ है उसको देखें तो वो रियल्म्स ऑफ बिलीफ या परसेप्शन या ओपिनियन से गाइडेड होता है। मतलब कोई भी इंसान अगर एक बिलीफ से गवर्न हो रहा है, परसेप्शन से गवर्न हो रहा है, एक ओपिनियन से गवर्न हो रहा है, तो वो बस विजुअल वर्ल्ड के चीज़ों को देख पाएगा, वो भी अपने सेंसेस के थ्रू बस देख पाएगा, उसके बियॉन्ड जो रियलिटी है उसको नहीं समझ पाएगा। ऑन दी सेकेंड पॉइंट ये है कि जो इंटेलिजिबल वर्ल्ड है वो कंपोज्ड ऑफ फॉर्म्स और आइडियाज़ हैं और वो परफेक्ट और अनचेंजिंग है। मतलब इंटेलिजिबल वर्ल्ड के अंदर ही हम फॉर्म्स के मतलब कंपोज ऑफ फॉर्म्स या आइडियाज़ को समझ सकते हैं जो कि परफेक्ट है और चेंजिंग है। हम जैसे कि डिस्कस किया कि जो फॉर्म्स है या आइडिया है वो अल्टीमेट शेप या परफेक्ट शेप में है और वो अनचेंजिंग है, वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो विजुअल वर्ल्ड के अंदर है वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आपको दिखेंगी अपने इर्द गिर्द, वो इम्परफेक्ट या चेंजिंग है। इंटेलिजिबल वर्ल्ड जो है वो सेंसेस के बियॉन्ड है, वो इंटेलेक्ट और रीजन से गवर्न होता है। विजुअल वर्ल्ड जो है वो सेंसेस से गवर्न होता है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस के बेस पे होता है। जो इंटेलिजिबल वर्ल्ड है वो ट्रुथ को, रियलिटी को और परमानेंस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इंटेलिजिबल वर्ल्ड मतलब में जहाँ हम चीज़ों के फॉर्म्स को या आइडियाज़ को समझ सकते हैं वो ट्रुथ या परमानेंस को रिप्रेजेंट करता है उस चीज़ के। लेकिन जब विजुअल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं तो जो शैडो है या रेप्लिका या कॉपी, चेंज, एनीथिंग जो बिकम हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, उसको विजुअल वर्ल्ड रिप्रेजेंट करता है, जो डार्कर साइड ऑफ द केव्स है। जो इंटेलिजिबल वर्ल्ड है वो जो चीज़ है परफेक्टली उसको दर्शाता है, उसके एसेंस को, उसके सिग्निफिकेंस को दर्शाता है, उसके सच्चे नेचर जो है, उसका जो गुण है, सच्चे गुण, उसको दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड विजुअल वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग को पोर्ट्रे करता है कि जो चीज़ें हो रही हैं या बदल रही हैं, जो चीज़ें हमारे आसपास दिख रही हैं। इंटेलिजिबल वर्ल्ड जो है वो सिंबलाइज करता है, जो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, केव के आउटसाइड जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब आपके फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड जब आप जा पाते हो, जो चीज़ों को देख पाते हो, आइडिया ऑफ गुड को समझ पाते हो, तो उसको इंटेलिजिबल वर्ल्ड जो है वो सिंबलाइज करता है। ऑन द अदर हैंड विजुअल वर्ल्ड जो है वो केव के अंदर के जो पार्ट को जो देखते हैं, जो ट्रुथ का एक मिनिस्कल पार्ट है, एक फैसेट है, उसको वो सिंबलाइज करने की कोशिश करता है। जो इंटेलिजिबल वर्ल्ड है वो हमें रियल नॉलेज की तरफ ले जाता है, इनलाइटन करता है चीज़ों को लेके। ऑन द अदर हैंड जो विजुअल वर्ल्ड है वो बिलीफ या फॉल्स इंप्रेशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो हम इससे ये बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि जो थियोरी ऑफ फॉर्म्स है वो बेसिकली अल्टीमेट रियलिटी है किसी भी चीज़ का, उसको दिखाने की कोशिश करता है, ट्रू एसेंस को दिखाने की कोशिश करता है। और हमारे डे टू डे एक्सपीरियंसेस जो हैं सेंसेस के हिसाब से उसके बियॉन्ड जाकर चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है। ये थियोरी ऑफ फॉर्म्स है। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट थियोरी ऑफ प्लेटो, दैट इज आइडिया ऑफ गुड। जो आइडिया ऑफ गुड का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर प्लेटो ने ये बताने की कोशिश की है कि जो जितने सारे फॉर्म्स जो अब तक हमने डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, सभी फॉर्म्स हैं, उसमें हाईएस्ट जो फॉर्म है, जो ग्रेटेस्ट फॉर्म है वो आइडिया ऑफ गुड है।
आइडिया ऑफ गुड मतलब फॉर्म्स जो किसी भी चीज़ के रियलिटी को दिखाने की कोशिश करता है वो फॉर्म्स है, ये थियरी ऑफ फॉर्म्स बोल सकते हैं, थियरी ऑफ आइडिया बोल सकते हैं। लेकिन जो थियरी ऑफ गुड है या आइडिया ऑफ गुड है वो उन सभी थियरी ऑफ फॉर्म्स का मतलब ग्रेटेस्ट वर्जन है। अल्टीमेटली जो थियरी ऑफ गुड है वो सभी थियरी ऑफ फॉर्म्स से कनेक्टेड है। मतलब अगर आप थियरी ऑफ फॉर्म्स को समझना चाहते हैं तो थियरी ऑफ गुड के मद्देनज़र चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि थियरी ऑफ गुड जो है वो थियरी ऑफ फॉर्म से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जितनी भी सारी फॉर्म्स है या थियरी ऑफ आइडिया है, जैसे चाहे ब्यूटी का कॉन्सेप्ट हो जाए या जस्टिस का फॉर्म हो जाए, ट्रुथ का फॉर्म हो जाए, वो थियरी ऑफ गुड पे डिपेंड करता है, यही मैंने पहले भी बताया। और उसके मीनिंग और वैल्यू को हम मतलब जो आइडिया ऑफ गुड है उसी के थ्रू सही तरीके से समझ सकते हैं। तो प्लेटो इस चीज़ को जो आइडिया ऑफ फॉर्म्स है उसको आइडिया ऑफ गुड के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। इसको हम और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब हम प्लेटो के एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करते हैं। इन प्लेटो वर्ड द गुड इज द सोर्स ऑफ ऑल दैट इज ब्यूटीफुल एंड राइट, द पेरेंट ऑफ लाइट एंड ट्रूथ। मतलब जो आइडिया ऑफ गुड है वो सोर्स है सभी ब्यूटीफुल और राइट चीज़ों का। मतलब थियरी ऑफ फॉर्म्स का, थियरी ऑफ फॉर्म्स में क्या होता है या किसी भी चीज़ का फॉर्म क्या होता है, वो ब्यूटीफुल होता है, वो परफेक्ट होता है और राइट होता है, ठीक है। और आइडिया ऑफ गुड जो है वो सोर्स है उन सभी फॉर्म्स का, मतलब उसमें सबसे सुपीरियर है, उससे कनेक्टेड है। तो आइडिया ऑफ गुड को आइडिया ऑफ फॉर्म से सेपरेट करके नहीं समझ सकते हैं, वही प्लेटो ने बताने की कोशिश की है। जस्ट एज सन गिव्स लाइट दैट अलाउज अस टू सी थिंग्स क्लियरली, द आइडिया ऑफ द गुड गिव्स ट्रुथ एंड इंटेलिजिबिलिटी, इट अलाउज द माइंड टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज एवरीथिंग एल्स। मतलब जिस तरीके से सन जो है वो जिसके लाइट से हम सभी चीज़ों को देख सकते हैं क्लियरली, उसी तरीके से आइडिया ऑफ गुड्स हमें ट्रूथनेस और इंटेलेक्ट देता है, जिसके थ्रू हम माइंड का यूज करके चीज़ों को समझ सकते हैं और उसको परख सकते हैं, उससे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो उन्होंने सन का एग्जाम्पल दिया है कि सन जिस तरीके से सोर्स है सभी चीज़ों के को देखने का, उसी तरीके से आइडिया ऑफ गुड जो है या थियरी ऑफ गुड जो है वो सोर्स है थियरी ऑफ फॉर्म्स को देखने का। इट इज़ बियॉन्ड ऑल बीइंग ग्रेटर दैन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इन पावर एंड वर्थ। मतलब वो सभी चीज़ों के बियॉन्ड है और सभी चीज़ों को समझने में आइडिया ऑफ गुड का यूज किया जा सकता है। अब हम अगर इसके एग्जाम्पल्स को देखने की कोशिश करें, आइडिया ऑफ गुड के एग्जाम्पल्स को देखने की कोशिश करें और इसको हम सोशली और मोरली जब हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि आइडिया ऑफ गुड कैसे थियरी ऑफ फॉर्म्स या थियरी ऑफ आइडिया है उसको समझ सकते हैं। जैसे कि द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव इन हार्मनी विद द गुड टू लीड गुड एंड वर्चुअस लाइफ। मतलब इसको अगर हम आइडिया ऑफ गुड समझ लें तो ये एक जो स्टेटमेंट है वो हमें गुड के बारे में या गुडनेस के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में समझाने की कोशिश करता है कि अगर हम हार्मनी में रहेंगे तो ह्यूमन लाइफ का पर्पस हार्मनी में रहना है, अच्छे से रहना है, ये तभी हम जाके एक अच्छी और वर्चुअस लाइफ को जी पाएंगे। ये आइडिया ऑफ गुड है। अगर इसी को आप रिलेट कीजिए थियरी ऑफ फॉर्म्स को समझने में, मतलब थियरी ऑफ फॉर्म्स में अगर किसी चीज़ को देखें तो कोई भी कॉन्सेप्ट मान लीजिए, इक्वालिटी, जस्टिस, एनीथिंग, तो वो आइडिया ऑफ गुड अगर हमारे पास है तो उसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि अच्छा थियरी ऑफ फॉर्म्स में भी जो चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी परफेक्ट फॉर्म में वो इसके थ्रू हम समझ सकते हैं। मतलब हमें सोसाइटी में कैसा रहना चाहिए हार्मनी के साथ, ये हमें पता होगा तभी हम ये समझ पाएंगे कि एक कम्युनिटेरियन सोसाइटी में कैसे रहना होता है या स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या एज ए इंडिविजुअल हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। वो हम आइडिया ऑफ गुड्स जो ये सेंटेंसेस दिए गए हैं उसके थ्रू हम उस कॉन्सेप्ट को, जो फॉर्म्स है, जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी है, जस्टिस है, लिबर्टी है, उसको हम समझ सकते हैं। जो सेकंड आइडिया ऑफ गुड लेट्स फॉर एग्जांपल दिया गया वो ये कि द गोल ऑफ कम्युनिटी ऑफ और द स्टेट इज टू क्रिएट कंडीशन दैट हेल्प इंडिविजुअल्स अचीव देयर गुड लाइफ। मान लीजिए एक आइडिया ऑफ गुड है कि एक कम्युनिटी का गोल ये होना चाहिए या फिर एक स्टेट का गोल ये होना चाहिए कि ऐसा कंडीशन आप क्रिएट कीजिए जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल अच्छी लाइफ जी सके, एक हेल्दी अच्छी लाइफ जी सके। ये आइडिया ऑफ गुड है, राइट।
इसको यूज़ करके आप ये समझ सकते हैं ना कि स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या स्टेट ट्रू फॉर्म में कैसा एग्जिस्ट करता है, स्टेट का फॉर्म क्या है, या फिर जुडिशियरी का क्या फॉर्म है। ये आप आइडिया ऑफ गुड जो नीचे दिया गया है उसको देख के आप समझ सकते हैं। तो दैट्स व्हाई ही सेड कि आइडिया ऑफ गुड जो है वो सन की तरह है, इसके प्रकाश में हम फॉर्म्स को, डिफरेंट फॉर्म्स को देख समझ सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि ईच पर्सन हैज़ ए मोरल ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू द गुड, कॉमन गुड, द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी एज ए होल। ठीक है, और मतलब इसको फॉर एग्जांपल अगर हम समझने की कोशिश करें तो हर एक इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि उसकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो कॉमन गुड में कंट्रीब्यूट करे, सबके भलाई के लिए वो भी कुछ काम करे। इस गुड को समझ के हम ये समझ सकते हैं कि एक स्टेट के अंदर सिटीजन के का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकता है, या सिटीजन को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, वो उस फॉर्म को समझने के लिए इस कॉमन गुड का हेल्प लेना पड़ेगा, राइट। तो थियोरी ऑफ फॉर्म्स और थियोरी ऑफ गुड या आइडिया ऑफ गुड जो है टोटली कनेक्टेड है, और आइडिया ऑफ गुड जो है वो सुपीरियर वर्जन ऑफ थियोरी ऑफ फॉर्म्स है। थियोरी ऑफ फॉर्म्स को समझने के लिए आइडिया ऑफ गुड को सेंटर में रख के हम समझ सकते हैं। अब हम एलिगेरी ऑफ केव के कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। प्लेटो का जो एलिगेरी ऑफ केव है का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने 2-3 बार ऑलरेडी समझाने की कोशिश कर दी है कि एक पावरफुल स्टोरी है ये समझने के लिए कि इल्यूजन और ट्रुथ में क्या डिफरेंसेस है, और विजिबल वर्ल्ड के अंदर कैसे इल्यूजन फंक्शन करता है, और इंटेंजिबल वर्ल्ड के अंदर कैसे ट्रुथ एग्जिस्ट करता है, और ट्रुथ तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इसको प्लेटो ने समझाने की कोशिश की है। एलिगेरी ऑफ केव के कॉन्सेप्ट में ही जस्ट गिव ए स्टोरी जहाँ पे जो कुछ लोग हैं वो केव के अंदर चेन्ड हैं और उसको बांध दिए गए हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ों को देख नहीं सकते प्रॉपरली। तो वो वॉल के पीछे देखने की कोशिश करते हैं जहाँ पे किसी भी चीज़ का रेप्लिका या शैडो दिखता है। उसको लगता है, उन लोगों को लगता है कि ये रियलिटी है, लेकिन वो एक सच्चाई नहीं है। उसमें से कुछ लोग जब चेन को तोड़कर बाहर निकलते हैं और जब इंटेलिजिबल वर्ल्ड में जाते हैं और जब वो रियलिटी को देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि वो बस मूवेबल ऑब्जेक्ट जो थी वो रियलिटी नहीं था, रियलिटी कुछ और है, वो तो बस एक शैडो था, वो इंटेलिजिबल वर्ल्ड का एक शैडो था, जो फॉर्म है उसका बस एक शैडो था। ठीक है, तो उसको वो समझाने की कोशिश करते हैं कि उस इंटेलिजिबल वर्ल्ड में जाने के लिए और चीज़ों के रियलिटी को देखने के लिए इंसान को इंटेलेक्ट और रीजन से गवर्न करना पड़ेगा और उसके लिए नॉलेज अटेन करना पड़ेगा, और तभी जाके वो इंसान जो है वो लाइट को एक्सपीरियंस कर पाएगा, ट्रुथ को एक्सपीरियंस कर पाएगा, जो आइडियाज़ या फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं अलग अलग चीज़ों की उसको वो समझ पाएगा। और यही एलिगेरी ऑफ केव्स का एक समरी भी है कि एजुकेशन वो जर्नी है जहाँ से डार्कनेस से लेकर लाइट का जो डिस्टेंस है वो कवर किया जा सकता है, और उसके अंदर विजडम और इंटेलेक्ट का यूज करके इल्यूजन को हटा के ट्रुथ को देखा जा सकता है। ये बहुत पावरफुल स्टोरी है, प्लेटो के द्वारा दिया गया है। नाउ लेट्स कम टू द प्लेटोज थियरी ऑफ जस्टिस। जस्टिस का कॉन्सेप्ट समय समय पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से देने की कोशिश की है। अब चाहे वो जॉन रॉल्स हो या नोजिक हो या पहले के समय में प्लेटो को देखें या फिर दूसरे जो थिंकर्स हैं, उन्होंने जस्टिस को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश की है। लेकिन एंशिएंट टाइम में जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट था जस्टिस के ऊपर वो ये था कि जस्टिस मीन्स एवरीवन डूइंग देयर ओन प्रॉपर वर्क, मतलब जो इंसान जिस चीज़ में परफेक्ट है उसको उस इंसान को वो काम उस तरीके के काम करने चाहिए। और एक आइडियल स्टेट के अंदर जो है 3 क्लासेस एग्जिस्ट करती है प्लेटो के हिसाब से, और उन 3 क्लास में जो इंसान जिस क्लास में एग्जिस्ट करता है उसको उस क्लास का जो काम है वो करना चाहिए, उसका रोल जो है उसको प्ले करना चाहिए और एक हार्मनी के साथ सोसाइटी में फंक्शन करना चाहिए विदाउट इंटरफेयरिंग इन अदर वर्क लाइक अदर पीपल वर्क, राइट। तो वो प्लेटो का जस्टिस का कॉन्सेप्ट है कि जो इंसान जिस काम के लिए बेस्ट सूटेड है वो उस काम को करे हारमोनियसली या फिर कोएग्जिस्ट करे साथ में। प्लेटो के लिए जो जस्टिस है वो पनिशमेंट या फिर वो नहीं है कि लोगों को पनिश किया जाए, बल्कि वो एक बैलेंस और ऑर्डर के चीज़ों को दिखाता है कि एक सोसाइटी कैसे बैलेंस हो सकती है, एक ऑर्डर्ड सोसाइटी कैसी हो सकती है, और एक सोसाइटी कैसे सही तरीके से फंक्शन करेगी जब एक इंडिविजुअल सही तरीके से अपना काम करेगा। जिस इंसान के अंदर जिस तरीके के
क्वालिटीज़ है या वर्चूज़ हैं, चाहे वो रीजन का वर्चू हो या स्प्रिट का वर्चू हो या डिज़ायर का वर्चू हो, एपेटाइट जिसको बोला है उन्होंने, तो वो इंसान अगर उस तरीके से अपना काम करे या रोल प्ले करे तो जस्टिस सोसाइटी में अपने आप ही पीसफुली इंश्योर हो जाएगा। ये प्लेटो के जस्टिस का कॉन्सेप्ट है। नाउ लेट्स कम टू दी अनदर थियरी ऑफ प्लेटो, दैट इज थियरी ऑफ आइडियल स्टेट। तो प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है बेसिकली उसको एक यूटोपियन वर्ल्ड की तरफ ही देखा जाता है, जिसको कि बहुत सारे लेटर थिंकर्स ने रिफ्यूज़ किया है और बहुत सारे क्रिटिक हैं उनके कि वो बोलते हैं कि प्लेटो एक क्लोज सोसाइटी के मार्गदर्शक रहे हैं, कि उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश की जो क्लोज है और वो ओपन नहीं है। उन्होंने सेंसरशिप को भी सपोर्ट किया और बाकी तरह की चीज़ें हैं। तो प्लेटो के आइडियल स्टेट का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल से मिलकर ही एक स्टेट बनता है, राइट। तो इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए। अगर हर एक इंसान अपना ड्यूटी परफॉर्म करेगा तो एक स्टेट अच्छे से फंक्शन करेगी। मतलब स्टेट इज ए इंडिविजुअल रिट लार्ज, है ना। और मीनिंग ये है उस बात का कि इंसान को एक परफेक्ट सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करने के लिए स्टेट क्राफ्ट जो है वो आनी चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर उसको कैसे पार्टिसिपेट करना है और कैसे उसको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, वो प्लेटो ने उसके अंदर बताने की कोशिश की है। तो आइडियल स्टेट जो है प्लेटो का, उसमें बेसिकली 3 क्लासेस हैं जिसके अंदर उन्होंने डिवाइड किया है सोसाइटी को। उसमें फिलोसोफर किंग्स का एक क्लास है जो रूलर्स हैं, बेसिकली उनके हिसाब से जो फिलोसोफर हैं वही डिजर्विंग है रूलर बनने के लिए। और वो विजडम से, वो जो फिलोसफर्स होंगे वो विजडम से गाइडेड होने वाले लोग होंगे। जो ऑक्सिलरीज हैं जो या फिर सोल्जर्स क्लास बोल सकते हैं, वो स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बेसिकली ट्रेडर्स हो गए, फार्मर हो गए या और दूसरे आर्टिसंस हो गए, कारपेंटर्स हो गए, सारे प्रोड्यूसर्स के कैटेगरी में आते हैं, जो कि सोसाइटी में बाकी जो काम है गवर्न करने के अलावा फंक्शन करती हैं उसको वो देखेंगे या समझ और उस तरीके से वो फंक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो जब ये तीनों क्लासेस हारमोनियसली फंक्शन करेंगी, जब सोसाइटी के अंदर तीनों क्लास के अंदर जो लोग हैं मतलब अलग अलग वर्चूज़ के साथ, तब वो सोसाइटी जब अच्छे से फंक्शन करेगी हारमोनियसली तो वही जस्टिस इंश्योर करेगी अल्टीमेटली, और तभी एक आइडियल स्टेट फॉर्म हो पाएगा। और आइडियल स्टेट में रहने के लिए इंसान को एजुकेटेड होना पड़ेगा, ऐसा प्लेटो का मानना था। और दैट्स व्हाई ही ट्राई टू डिड मल्टीपल रिफॉर्म्स एजुकेशन के अंदर, जहाँ पे हर कोई एजुकेशन ले सकता है और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए हर एक इंसान के लिए। और हम देखते हैं कि जैसे मल्टीपल टाइम पे उसके लिए टेस्ट होंगी कि कौन सा इंसान अगर टेस्ट के अंदर पास हो जाता है तो एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट सुपीरियर क्लास, और अगर वो फेल हो जाता है तो रिमेन इन दी 3rd क्लास, दैट इज़ दी प्रोड्यूसर क्लास। और अगर सेकेंड टेस्ट में फेल हो जाता है तो दे विल बी इन ऑक्सिलरी क्लास, और जो सब सारे टेस्ट में पास कर जाएंगे दे विल बी इन फिलोसोफर क्लास। उनका ऐसा मानना था कि जब वो फिलोसोफर क्लास इतने सारे टेस्ट को पास करके आगे बढ़ेंगे और इतनी सारी नॉलेज उनके पास होगा तो सोसाइटी अपने आप में ही परफेक्ट होगी जब वो फिलोसफर्स उसको रन करेंगे। तो वो एक आइडियल स्टेट था, आइडियल सोसाइटी थी प्लेटो के लिए। हालांकि उसके अंदर बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी है कि क्लास जो है प्लेटो के अंदर वो इमूवेबल है। मतलब कोई भी इंसान अगर अब मान लो कि वो प्रोड्यूसर्स है, लेकिन इन हिज लाइफ इफ ही अटेन नॉलेज इन द मिड्स ऑफ हिज लाइफ, नॉट एट दिस टाइम व्हेन द टेस्ट वाज हैपेंड बट इन द लेटर फेज ऑफ लाइफ, कि वो इतना नॉलेज अटेन कर लेता है, वो वर्चूज अटेन कर लेता है कि वो ऑक्सिलरी या फिलोसोफर क्लास में जा सकता है, तो वो कैसे जाएगा। मतलब उसके लिए तो टेस्ट के बाद 20 ईयर्स के बाद जो टेस्ट होगा उसमें वो अनसेलेक्ट हो गया तो फिर फ्यूचर में उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो दूसरे क्लास में जाने की ख़त्म हो जाती है और क्लास इमूवेबल हो जाता है, रिजिड हो जाएगा। तो ये उसके कुछ क्रिटिसिज्म हैं। और इसके अलावा जो है प्लेटो ने काफ़ी कंट्रोवर्शियल आइडियाज़ भी दिए इसके अंदर, जो कि ये था कि गार्डियन क्लास जो होगी, इसके अंदर फिलोसोफर क्लास या फिर ऑक्सिलरी क्लास दोनों होंगे, वो उनकी कोई प्राइवेट फैमिली नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। उनके वो जो लाइफ प्रोपोर्शनली जो लाइफ लीड करेंगे उसमें कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड फैमिली एंड प्रॉपर्टी होगा। मतलब जो एक कम्यून की तरह उनकी लाइफ होगी
और उसके अंदर वो उनका कुछ भी खुद का नहीं होगा। प्लेटो का ये मानना था कि इससे इसलिए करना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली जो रूलिंग क्लास है वो करप्ट हो जाती है, वो सेल्फिश हो जाती है और सोसाइटी बहुत टेरेनी में चेंज हो जाती है, डिस्पोटिज्म का एक फॉर्म ले लेती है। तो उसको बचाने के लिए सेल्फिश डिज़ायर जो है रूलिंग क्लास का, उसका ख़त्म होना इम्पोर्टेंट है। और उस डायरेक्शन में प्लेटो को ये लगता था कि फिलोसोफर क्लास या ऑक्सिलरी क्लास को प्रॉपर्टी नहीं रखनी चाहिए, एक कॉमन वे में लाइफ को लीड करना चाहिए। उसके कोई बच्चे नहीं होंगे, बच्चे होंगे भी तो उसको पता नहीं होगा कि उसके मदर फादर कौन है, या फिर उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो कॉमन प्रॉपर्टी होगी। इसके अंदर सारे जो लोग हैं गार्डियन क्लास के वो कॉमनली चीज़ों का यूज करेंगे विदाउट हैविंग द पोजेशन ऑफ इट। तो वो आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है प्लेटो का, उसके अंदर ये सारी बातें आती है। अब हम प्लेटो के कुछ इम्पोर्टेंट आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट है उसको देखने की कोशिश करते हैं। उसमें से एक है नॉक्टर्नल कॉन्सेल। ये जो कॉन्सेप्ट है प्लेटो का, उसके अंदर ये है कि जो फिलोसोफर्स होंगे या फिर जो लोग वॉर के अंदर या अपनी लाइफ के अंदर एक एक्सपीरियंस्ड फेज में आ गए होंगे, जहाँ पे उनके पास मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस एल्डरली ग्रुप्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको कि उन्होंने नॉक्टर्नल काउंसिल भी बोला है, कि वो लोगों को नॉलेज दे, लोगों को इनलाइटन करे कि स्टेट को कैसे फंक्शन करना है, या जो रूलर्स हैं, जो किंग हैं, उसको गाइड करे कि वो कैसे एक सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं जो जहाँ पे लोग अच्छे से वेलबींग में रहे और लोगों के पास सारी सुविधाएं हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें करना नॉक्टर्नल काउंसिल का, जो ग्रुप ऑफ एल्डरली पर्सन है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉक्टर्नल काउंसिल का। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटो, दैट इज नोबल लाई। अब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है प्लेटो का, जहाँ वो नोबल लाई, मतलब लाई तो एक वर्चू नहीं है, लाई एक वाइसेस के अंदर आते हैं, लेकिन नोबल लाई को प्लेटो ने जस्टिफाई किया है कि कुछ लाई जो है वो नोबल लाई है, वो लीडर्स जो है वो मिथ क्रिएट करने के लिए उस लाई का यूज कर सकती है, क्योंकि उस लाई के थ्रू एक ग्रेटर गुड को अटेन किया जा सकता है। उससे उनका ये मतलब होता है कि ये लाई पर्सनल गेन के लिए नहीं होना चाहिए, ये जो नोबल लाई है वो लोगों को गाइड करने के लिए होना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में एक हार्मनी रहे, एक शेयर्ड पर्पस या शेयर्ड गोल हो। और उसके कई बेनिफिट्स उन्होंने बताए जो नोबल लाई हैं उनके, मतलब उनका जो पर्पस था बोलने का कि नोबल लाई सोसाइटी में होनी चाहिए और लीडर्स को इसे स्प्रेड करना चाहिए, वो बहुत ही फिलोसॉफिकल लेवल से आया था, डीप फिलोसॉफिकल लेवल से, कि जो इंसान सिर्फ सेंसेस के थ्रू दुनिया को देख रहे हैं, या जो जिसके पास इतना इंटेलेक्ट या रीजन नहीं है, उनको गवर्न करने के लिए मतलब एक मिथ क्रिएट करना ज़रूरी है। और ये इसलिए है क्योंकि इंसान का अगर कोई मिथ होगा या एक नोबल लाइज में वो बिलीव करे तो उसको रूल करना इजी हो जाता है। मान लो कि अगर किसी इंसान को ये बता दिया जाए कि अगर तुम अच्छे से रहोगे, प्यार से रहोगे, तो भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम्हारे पास बहुत सारी वेल्थ आ जाएंगी। तो ये क्या है, अपने आप में लाए है, एक झूठ है, लेकिन इसके इम्पैक्ट क्या होगी कि वो इंसान गलत काम करने से बचेगा, अपने पड़ोसी के साथ या अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के रहेगा, और इससे एक हार्मनी क्रिएट रहेगी, सोसाइटी यूनाइटेड रहेगी। तो जो नोबल लॉ है उसका पर्पस था कि लोगों के बीच में लॉयल्टी को स्ट्रेंथन करना, कम्युनिटी को लेके, अपने ग्रुप ऑफ पीपल को लेके, सोसाइटी या देश को लेके एक यूनिटी या लॉयल्टी को मेंटेन करना इस लाई का मकसद था। जो कन्फ्लिक्ट्स एक देश के अंदर हो जाते हैं कई बार, तो उसको रिड्यूस करने के लिए कोई एक लाई, अगर नोबल लाई आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो एक सोसाइटी को बेनिफिट करती है। तो इसका एक डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग था नोबल लाई का। ऑल्दो लेटर थिंकर्स ने इसको क्रिटिसाइज करते हुए ये बोला कि नोबल लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे सोसाइटी को फॉर्म करेगा जहाँ पे जो किंग्स हैं या फिर जो रूलर हैं वो इस लाई को अपने फ़ायदे के लिए, सेल्फिश रीजन के लिए यूज़ करेंगे। कि प्लेटो सेड दैट नोबल लाई शुड बी स्प्रेड। तो सोसाइटी के अंदर या कंट्री के अंदर कोई भी लाई स्प्रेड किया जाएगा लोगों को डाइवर्ट करने के लिए या फिर लोगों के ऊपर रूल करने के लिए इन अ डिफरेंट वे। तो उसका एक नेगेटिव साइड भी है लॉ का, नोबल लाई का, राइट, जिसको कि लेटर थिंकर्स ने बोला है और उसके लिए प्लेटो को क्रिटिसाइज भी किया जाता है।
प्लेटो ने नोबेल लाइक के समकक्ष ही सेंसरशिप को भी उन्होंने जस्टिफाई किया कि सोसाइटी के अंदर अगर आप सेंसरशिप लगाते हो या किंग कोई चीज़ को लेके बैन करता है किसी भी चीज़ को और वो अगर देश हित में है तो वो किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्लेटो ने रिपब्लिक के अंदर सेंसरशिप को फेवर करते हुए ये कहा कि उस सभी आर्ट को या पोइट्री को या स्टोरीज को बैन करना चाहिए जो एक मोरल सोसाइटी के अगेंस्ट है या फिर जो एक रेबेलियन क्रिएट कर सकता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है सोसाइटी के अंदर। तो उसको प्लेटो ने ये जस्टिफाई किया कि उस चीज़ को सेंसर किया जाना चाहिए, उस चीज़ पे रोक लगानी चाहिए। तो प्लेटो नॉट ओनली फेवर्ड द नोबेल लाई बट ऑल्सो फेवर्ड द सेंसरशिप फॉर द अल्टीमेट गुड, फॉर द लार्जर गुड ऑफ द पीपल और द कंट्री, राइट। और नोबेल लाई के अंदर उन्होंने ये जस्टिफाई किया कि सोसाइटी के लिए गुड है, अच्छा है, ये हार्मनी और लॉयल्टी को मेंटेन रखेगा सोसाइटी के अंदर। और ये जो मिथ फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है ये कॉमन लोग को गवर्न करने के लिए एक बेस्ट सूटेड पाथ बोल सकते हैं या एक रास्ता बोल सकते हैं, वो है। Now let's move on to the next theory of Plato, that is myth of metals. तो myth of metals का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने पहले भी थोड़ा बहुत देखने की कोशिश की थी कि myth of metals को जो है वो नोबेल लाई का पार्ट है जो प्लेटो ने सजेस्ट किया था। और नोबेल लाई ही सजेस्टेड फॉर द सेक ऑफ maintaining the unity of the nation, having a sense of loyalty toward the community, या फिर टू बिल्ड ए गुड कैरेक्टर इन ह्यूमन बीइंग। तो उस सेंस में कि लोग यूनिफाई रहे और एक लार्जर गुड को समझे, या फिर वो इंसान जो लार्जर गुड को समझने के कैपेबल नहीं है, जो इनलाइटेड नहीं है, जो कॉमन पीपल है, उसके लिए नोबेल लाई इन्वेंट करने की बात की गई थी, स्प्रेड करने की बात की गई थी, ताकि वो उसको सच मान के एटलीस्ट सही काम करे, राइट। तो मिथ ऑफ मेटल उसका एक पार्ट है। और मिथ ऑफ मेटल्स जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि ये नोबेल लाई का पार्ट मिथ ऑफ मेटल्स है और मिथ ऑफ मेटल्स जो प्लेटो ने सजेस्ट किया उसका भी काइंड ऑफ सिमिलर सा मोटिव था कि लेजिटिमाइज क्लास स्ट्रक्चर, राइट, जो और एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। ऑब्वियसली बात है, जब आप सोसाइटी को 3 क्लास में डिवाइड कर रहे हो तो यू कैन नॉट ऑलवेज लेजिटिमाइज इट, पीपल विल क्वेश्चन यू कि ऑन व्हाट बेसिस यू हैव क्लासिफाइड द सोसाइटी और डिवाइडेड द सोसाइटी। जहाँ पे जो रूलिंग क्लास है ऑब्वियसली उसके पास एक मोर प्रिविलेज होता है, मोर एक्सेस होता है टुवर्ड एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। सो द वर्किंग क्लास और द पीपल हु डू नॉट हैव दैट मच ऑफ प्रिविलेज विल क्वेश्चन यू। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए यू जस्ट इन्वेंटेड द मिथ ऑफ मेटल्स, और मिथ ऑफ मेटल्स ऑब्वियसली नोबेल लाई का पार्ट है। तो जब हम मिथ ऑफ मेटल्स को देखते हैं तो उसको प्लेटो ने एक अलग नाम भी दिया है कि मिथ ऑफ अर्थ बॉर्न। और उसमें प्लेटो ने समझाने की कोशिश की है कि जैसे इस धरती के पार्ट जो हैं वो सभी एंटिटी हैं, हम उसी धरती की संतान हैं। और इन सिमिलर वे ये सेट कि देखो जैसे कि अलग अलग मेटल्स हैं, चाहे वो गोल्ड हो जाए या सिल्वर हो जाए या फिर ब्रॉन्ज हो जाए या आयरन मान लें सपोज, तो वो एक ही धरती से निकले हुए हैं बट दे हैव डिफरेंट कैरेक्टर, दे हैव डिफरेंट ट्रीट्स, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो सब अलग है, लेकिन जो गोल्ड हो या सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो, लेकिन उसका काम अलग अलग है, उसके गुण अलग अलग हैं। तो ऑल्दो उनका सोर्स एक ही है बट दे हैव डिफरेंट थिंग टू फंक्शन। उसी तरीके से उसको जस्टिफाई करने के लिए उसी तरीके से उन्होंने 3 क्लास को जस्टिफाई किया था कि उसी वे में हम सभी एक सोसाइटी के पार्ट है, एक सिंगुलर सोसाइटी के पार्ट है, और हम सब उतनी वैल्यू रखते हैं, लेकिन हम सब में अलग अलग ट्रेड्स हैं। और हम सब के अंदर जैसे कि कुछ लोगों के अंदर जो है वो गोल्ड सोल है, राइट, और कुछ लोगों के अंदर सिल्वर सोल है, सोल जो बना है वो सिल्वर का बना है, कुछ लोगों के अंदर ब्रॉन्ज की तरह सोल है। तो जस्ट टू जस्टिफाई कि जैसे अलग अलग मेटल्स होते हुए भी दे हैव डिफरेंट कैरेक्टर और वो अलग अलग चीज़ों के लिए बने हैं, वैसे ही हम सोसाइटी के पार्ट हैं और हम 3 अलग अलग क्लासेस हैं, और हम तीनों क्लासेस अलग अलग तरह के कामों के लिए या अलग अलग तरह के फंक्शंस के लिए बने हुए हैं। तो उसको लेजिटिमेसी देने के लिए अब लोग ये अगर मान लेंगे कि दे हैव गोल्ड सोल और समथिंग, तो
लोग उस तरीके से फिर क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, कि अगर ये लोग मान लेंगे कि कुछ लोग सिल्वर सोल है, कुछ लोग जो है वो ब्रॉन्ज सोल है, तो दे विल नेवर क्वेश्चन कि आपने कैसे सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दे विल एक्सेप्ट कि हाँ, हम इस सोसाइटी के पार्ट हैं और हम सब में अलग अलग सोल है, तो हम अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक मोटिव था प्लेटो का मिथ ऑफ मेटल का कॉन्सेप्ट देने के पीछे। और हम ये देख सकते हैं कि ये भी एक नॉबल लाई है, ये झूठ है कि हम एक सोल, ऑब्वियसली देयर इज नथिंग लाइक सोल जो गोल्ड से बने हो और या फिर सिल्वर से बने हो या अलग तरीके के मेटल से बने हो, ये झूठ है ऑब्वियसली। बट ये झूठ इन द लार्जर गुड स्कीम ऑफ थिंग्स, इन द लार्जर गुड, इन द कॉमन, फॉर द कॉमन मासेस, प्लेटो के हिसाब से इट इज वर्किंग गुड, राइट। सो उन्होंने इस तरह के झूठ को स्प्रेड करने की बात की नोबल लाई के अंदर, और मिथ ऑफ मेटल इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट थिंग, राइट। जो थियरी से या फिर प्रीवियस थियरी से या कॉन्सेप्ट से हटके हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे, जो कई बार एग्जाम्स के अंदर आ भी जाते हैं। तो ये जो सीरीज मैंने बनाई आप देख रहे होंगे कि सोक्रेट्स जो है वो प्लेटो के मेंटोर है, प्लेटो जो है वो एरिस्टोटल के मेंटोर है, या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्लेटो सोक्रेट्स के डिसाइपल है, एरिस्टोटल प्लेटो के डिसाइपल है। तो एक चेन मैंने बनाया है, जो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्लेटो इज टीचर और मेंटोर ऑफ हुम, एरिस्टोटल और सोक्रेट्स। तो द आंसर इज एरिस्टोटल। सोक्रेट्स इज द मेंटोर ऑफ हुम, प्लेटो और एरिस्टोटल, द आंसर इज प्लेटो। तो इस सीरीज को याद रखना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स जो है वो बिल्ड किया है, और वो कहीं ना कहीं मुझे हेल्प किया था इसको समझने में, इस कॉन्सेप्ट को याद रखने में। दैट इज SPA, S फॉर सोक्रेट्स, P फॉर प्लेटो एंड A फॉर एरिस्टोटल। मतलब ये सीरीज लेफ्ट टू राइट जाता है, और सोक्रेट्स जो है वो सबसे पहले आते हैं, देन प्लेटो, देन एरिस्टोटल। ये सीरीज में आप याद रख लेंगे तो इट वुड बी मोर ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और नेक्स्ट थिंग जो अदर फैक्ट है प्लेटो के बारे में, वो ये है कि प्लेटो ने जो एक इंस्टीट्यूशन बनाया था फॉर द पर्पस ऑफ एनलाइटनिंग द यूथ और द मासेस, और फॉर द सेक ऑफ गिविंग द हायर एजुकेशन, वो एकेडमी नाम का इंस्टीट्यूशन जो है, वो यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो पहला इंस्टीट्यूशन एथेंस के अंदर बनाया था प्लेटो ने, उसका नाम एकेडमी था। और इसको फर्स्ट इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। अब ये बात भी समझना इंपॉर्टेंट है कि सोक्रेट्स ने इंट्रोड्यूस किया, प्लेटो ने इंट्रोड्यूस किया सोक्रेटिक डायलेक्टिकल मेथड। ये सोक्रेट्स भी कर सकते थे, बट द ट्विस्ट इज दैट सोक्रेट्स ने अपने कोई भी काम को पब्लिश नहीं किया, उन्होंने कोई भी काम रिटन फॉर्म में या उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं किया कि हम सोक्रेट्स को सोक्रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाए। सोक्रेट्स को हमेशा प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा गया है। प्लेटो ने जिस तरीके से कई बुक लिखी सोक्रेटिक डायलॉग के अंदर, वो सारे बुक्स सोक्रेट्स के डायलेक्टिकल मेथड को शो करते हैं कि सोक्रेट्स किस तरीके से डिबेट करते थे, उनका जो तरीका था ट्रूथ तक पहुंचने का वो डायलेक्टिकल था। ये प्लेटो ने इंट्रोड्यूस किया सोक्रेट्स की मेथड को, तो इसको बेसिकली सोक्रेटिक डायलेक्टिकल मेथड को प्लेटो को ही श्रेय दिया जाता है कि ही डिड फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिटन फॉर्म, तो जो उनका वर्क है उसके अंदर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एडमायरर एंड क्रिटिक्स ऑफ प्लेटो। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि प्लेटो के एडमायरर एंड क्रिटिक्स प्लेटो के बारे में क्या सोचते थे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने वर्क्स के थ्रू प्लेटो को क्रिटिसाइज किया या फिर सपोर्ट किया, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि हु इज द क्रिटिक ऑफ प्लेटो, और उसमें कई नाम दिए होंगे और यू हैव टू मेंशन कि कौन से हैं या फिर कौन से नहीं हैं। तो कार्ल पॉपर जो है वो क्रिटिक रहे हैं प्लेटो के। प्लेटो को उन्होंने जो है अपनी बुक दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़ के अंदर क्रिटिसाइज किया है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिटिसिज्म किया है प्लेटो का। और वो बोलते हैं कि प्लेटो जो है वो टोटलिटेरियनिज्म का फाउंडर है, मतलब ही वाज द फर्स्ट वन हु बिकॉज ऑफ हिज थियरी एक टोटलिटेरियन सोसाइटी बनती है, और उनको एक क्लोज सोसाइटी का भी फाउंडर बोला गया है कार्ल पॉपर के द्वारा कि ही वाज द प्रमोटर ऑफ क्लोज सोसाइटी। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि जब एक क्लास स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब एक रिजिड क्लास स्ट्रक्चर या हायरार्की की बात करते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं, तो देयर इज नो चॉइस फॉर द पीपल, राइट, फॉर द कॉमन पीपल देयर इज नो चॉइस कि वो किस क्लास में रहना चाहते हैं, वो सच में कुछ करना चाहते हैं या फिर
लेट्स सपोज कि आपने अलग अलग टाइम पे एग्ज़ाम लिया कि हु विल बी इन दी नेक्स्ट हायर क्लास, वहाँ पे कोई इंसान 20 ईयर्स में फेल हो जाता है और वो ट्रेडर क्लास में या फिर प्रोड्यूसर क्लास में ही रह जाता है। इन कमिंग लेटर ईयर ऑफ हिज लाइफ अगर वो इंसान पढ़ लिख लेता है या वो सारे ट्रेड्स एक्वायर कर लेता है जो कि उसे फिलोसफर क्लास के नज़दीक ले जाए या फिर वॉरियर क्लास के समकक्ष खड़ा करे, तो क्या प्लेटो इस बात के लिए एग्री होंगे कि वो इंसान अपनी मर्जी से चेंज कर पाए अपनी क्लास? द आंसर इज नो। तो ऑब्वियसली पीपल डू नॉट हैव दैट मच ऑफ चॉइसेस, दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ फ्रीडम, एंड व्हेन these things happen, obviously these things are trade of totalitarianism or authoritarian government, when you have limited choice, when you don't have that much of liberty to decide what you will do। तो टोटलिटेरियनिज्म का फाउंडर उन्होंने बोला है प्लेटो को इस वजह से। RHS क्रॉसमैन है, उनकी बुक है प्लेटो टुडे, उसमें ही ऑल्सो क्रिटिसाइज प्लेटो और सजेस्ट करते हैं कि अगर मॉडर्न टाइम के अंदर प्लेटो के थियरीज को या कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए तो, या फिर आइडियल स्टेट के कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई किया जाए तो ये बस ऑथोरिटेरियन कंट्रोल से ज़्यादा कुछ नहीं होगा और जस्टिस तो बिल्कुल नहीं मिलेगी उसमें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इट गिव्स अ लॉट ऑफ पावर टू दी रूलर्स कि जहाँ पे वो नोबेल लाई जैसी चीज़ों को स्प्रेड कर सके। और नोबेल लाई हम सुनने में बहुत अच्छा लगता है बट इट हैज़ ए अदर फैसेट कि जो रूलर होगा या फिर जो पावर होल्डिंग पोजीशंस है वहाँ से लाइंस को स्प्रेड किया जाएगा और उसको जस्टिफाई भी कर दिया जाएगा कि इट इज़ फॉर द सेक ऑफ द कॉमन मासेस। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक सेल्फिश रीजन के लिए भी हो सकता है। तो वो ऑब्वियसली एक ऑथोरिटेरियन सोसाइटी कंट्रोल को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जा सकता है प्लेटो के वर्क्स को, राइट। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि मॉडर्न टाइम में तो ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया जा सकता, इसलिए प्लेटो टुडे के अंदर जो बुक है उनकी RHS क्रॉसमैन की, उसके अंदर क्रिटिसाइज किया गया है। द नेक्स्ट थिंकर इज W. फाइट, जिनका वर्क है द प्लेटोनिक लेजेंड। उसके अंदर ही सेड कि जो मिथिकल एडमिरेशन है प्लेटो का वो उनको ब्रिलियंट बताता है और ओवर आइडियलिस्टिक ड्रीमर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और हिज विजन वाज डिटैच्ड फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। मतलब ही वांटेड टू से कि प्लेटो वाज पोर्ट्रेड एज ए थिंकर हु गिव द आइडियल स्टेट कॉन्सेप्ट एंड सिमिलर कॉन्सेप्ट, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो ब्रिलियंट तो सुनने में लगती है लेकिन वो ओवर आइडियलिस्टिक है। मतलब इतना ज़्यादा आइडियलिज्म अगर आप रखेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। अब जिस तरह की बातें वो करते हैं कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड फैमिली के अंदर प्लेटो, वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग करप्ट नहीं होंगे, रूलिंग क्लास करप्ट नहीं होगी, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा, लोग सिंपल लाइफ जिएंगे और सबकी भलाई के लिए काम होगा। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या एक कॉमन इंसान, चाहे वो कोई किंग हो या फिर एक कॉमन पर्सन हो, अपनी फैमिली के बिना रह सकता है? क्या ये आइडियल लग रही है? क्या ये आपको प्रैक्टिकल लग रही है बात सुनने में? क्या कोई इंसान अपने बच्चों से दूर रह सकता है? द आंसर इज नो। क्या फिर किसी इंसान का ये जो डिजायर है प्रॉपर्टी एक्वायर करने का, ये हटाया जा सकता है उसके अंदर से? अगेन द आंसर इज नो। इसलिए एरिस्टोटल ने इस पॉइंट पे प्लेटो को क्रिटिसाइज किया है और बोला है कि द अर्ज टू कलेक्ट वेल्थ और एक्वायर वेल्थ इज़ वेरी नेचुरल, और वो इंसान की बेसिक नीड है, उसको आप हटा नहीं सकते। तो इसलिए W. फाइट जो है वो कहते हैं कि ये ओवर आइडियलिस्टिक है, ड्रीमर, एक यूटोपियन काइंड ऑफ विजन है जो कि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर संभव नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो R.L. नेटलशिप है, उनका वर्क है लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो। उसके अंदर वो प्लेटो का प्रेज भी करते हैं। कुछ थिंकर्स हैं जो प्लेटो को बहुत प्रेज करते हैं कि Plato's work as a profound exploration of moral and political philosophy। बोलते हैं कि Plato was the first thinker who explored different dimensions of morality और practical philosophy को बहुत explore करते हैं। ऐसा political philosophy को explore करते हैं। Obvious सी बात है, ये तो सच है कि प्लेटो ने जितने वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जितनी फिलॉसफी इमर्ज हुई उसमें कहीं ना कहीं आपको प्लेटो के काम का ग्लिम्स दिखने को मिल जाएगा, एक झलक आपको दिख जाएगी कि प्लेटो ने सिमिलर टॉपिक पे थोड़ा बहुत काम किया है, चाहे वो अपोजिट में हो चाहे वो सपोर्ट में हो, बट ही डिड सम सॉर्ट ऑफ वर्क ऑन रिलेटेड टॉपिक, चाहे वो मेटाफिजिक्स हो, चाहे वो एसेंशियलिज्म हो, चाहे वो आइडियलिज्म हो, चाहे वो नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट हो, थियरीज हो,
सब पे प्लेटो का बहुत काम रहा है। तो ऑब्वियसली उनके ग्लिम्स को आप हर जगह देख सकते हैं, उनके एक्सप्लोरेशन को हर जगह आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जब हम ए टेलर की बात करते हैं, उनका वर्क है प्लेटो द मैन एंड हिज वर्क, उसमें वो प्लेटो को फिर अगेन प्रेज करते हैं कि ही वॉज मच विजनरी थिंकर, और उनको अपने समय से पहले की बात समझने के लिए प्रेज करते हैं कि सच थिंग्स डू मे हैपन। ये बात प्लेटो को पता थी एक लेवल तक, और कुछ बातें ऑब्वियसली बात है कि उनकी कुछ प्रोफेसी गलत भी हुई और कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत आइडियल है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत रेलिवेंट भी हैं उनकी बातें, तो उसके लिए उनको प्रेज किया जाता है ए टेलर के द्वारा इन हिज बुक, कि वो फिलॉसफी को एक्सप्लोर करते हैं। एथिक्स जो है, ऑब्वियसली बात है, जो एथिक्स और एजुकेशन है, वर्चूज़ है, उसको रिपब्लिक के अंदर जो उनका वर्क है प्लेटो का, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। एजुकेशन को, एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा जो है सो रेडिकल तरीके से इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं प्लेटो। तो दिस ऑल थिंग्स जो है वो प्लेटो को कहीं ना कहीं एक अलग थिंकर या एक अलग फिलोसोफर बनाता है। दूसरे थिंकर्स हैं जैसे कि अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड है, वो प्लेटो के बारे में बहुत ही फेमसली एक कोट देते हैं कि सेट कि द सेफेस्ट जनरल कैरेक्टराइजेशन ऑफ यूरोपियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन इज दैट इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फुटनोट्स टू प्लेटो। मतलब ये बोलते हैं कि यूरोपियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन के अंदर आपको जनरल कैरेक्टराइजेशन जो देखना है ना, वो प्लेटो के फुटनोट्स मिलेंगे आपको। हर वर्क्स के अंदर, हर फिलोसॉफिकल वर्क्स के पीछे आपको कहीं ना कहीं प्लेटो की, जो मैंने पहले बात की, कि प्लेटो के काम का ग्लिम्स आपको दिख जाएगा हर एक फिलोसोफर के काम में, चाहे वो आइदर कॉन्ट्राडिक्टरी हो, एंटागोनिस्टिक हो, या फिर इन सपोर्ट ऑफ दैट प्लेटो हो, तो वो आपको दिख जाएगा। और उसके फुटनोट्स आपको पूरे यूरोपियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन पे देखने को मिलता है। ये अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड का मानना था। बर्ट्रैंड रसेल का पॉइंट ऑफ व्यू जो है प्लेटो को लेकर बहुत ही बैलेंस था। समटाइम्स ही यूज्ड टू प्रेज प्लेटो like he was the greatest ancient philosopher, but on the other time he used to criticize him as well at different time for his theories and concept. So he was kind of very balanced when he was praising or he was admonishing the Plato's work. So Bertrand Russell was a very balanced critique of Plato. So that's it for today. Thank you for watching the video, and if you like this video, please like, share and subscribe. And I would like to tell you that this channel is totally dedicated to the student of political science and humanities, and also for the student who are pursuing the graduation or masters. So this video will gonna help you, and if you think that I should create further videos like this, please do comment in the comment section, and thank you.